Today I am going to teach you function of heart. Before knowing the function of heart, we will see the basic structure of heart. As we know that the human heart is divided into four chambers. Upper two chambers are called atria and lower two chambers are called ventricles. This is right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. In right atrium, heart receives blood with the help of superior vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava brings blood from the upper part of the body and inferior vena cava brings blood from the lower part of the body to the heart. And this blood is transferred from right atrium to right ventricle with the help of tricuspid valve. When the tricuspid valve opened, this blood comes into right ventricles. Now, when right ventricle is filled with blood, the blood pumped out with the help of pulmonary artery to the lungs. It goes lungs for the purification of blood. Then this purified blood or oxygenated blood comes in left atrium with the help of pulmonary vein, and from this left atrium blood pumps into left ventricle, and with the help of carotid systemic aorta, this blood is transferred to the different parts of the body. Here in left side the blood is oxygenated and right side the blood is deoxygenated or oxygenless blood. So this is the basic structure of heart. Pulmonary circulation, systemic circulation and coronary circulation. All these circulation are discovered by William Harvey in 1628, and the function of heart is controlled by medulla oblongata of the mind. First we will see pulmonary circulation. Pulmonary circulation. It is related to the pulmonary artery and pulmonary vein. Pulmonary circulation is responsible to take away blood from the heart to lungs, where it is oxygenated, and then it brings blood to the heart again. Means once again it take away the blood from the heart, and then after purification it brings the blood again to the heart. मतलब क्या है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स को जाएगा, लंग्स में जाकर वो प्यूरिफाइड होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में फिर से आएगा. तो ये सर्कुलेशन क्या कहलाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्यों पल्मोनरी इसका नाम पड़ा है? क्योंकि इसमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन और लंग्स तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है. सो इट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. देन सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सिस्टेमिक सर्कुलेशन systemic circulation. In this circulation, carotid systemic aorta is responsible. It brings blood from the heart to the different parts of the body. Systemic circulation में क्या होगा? इसमें ब्लड ह्यूमन हार्ट से निकल करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाया जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन. और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैरोटिक सिस्टेमिक aorta. Now next is coronary circulation. As we know that the heart itself is made of cardiac muscles, so it also needs supply of blood for function. In coronary circulation, blood is provided by coronary arteries to the heart. Coronary circulation में क्या होगा? coronary arteries के द्वारा हार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, उसके कैपिलरीज में, उसके मसल्स में हार्ट को ब्लड सप्लाई किया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन. इन दिस वे देर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन. फर्स्ट वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, देन सेकेंड इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, देन कोरोनरी सर्कुलेशन.
Now there are two main words in the function of hearts. First one is diastole or systole. Diastole, it is relaxed period of relaxed period of atrium or ventricle. When atrium and ventricle is relaxed, it is filled with blood. जब एट्रियम और वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होगा मतलब शिथिल अवस्था में होगा, तब इसमें क्या होगा, ब्लड आएगा. मतलब शिथिलन की अवस्था में ये क्या होगा, ब्लड को रिसीव करता है. It is relaxed period. It is called diastole in English. Then systole, it is contracted period. When atrium and ventricle is contracted, then it push the blood from one chamber to the another chamber of the heart or outside the heart. और सिस्टोल क्या है, संकुचित करना, प्रेशराइज होना. when heart is pressurized or in contracted form, chambers of the heart, atrium और ventricle, उसके जो chambers होंगे वो contracted form में होंगे, तो उसमें से क्या होगा, प्रेशर बनेगा. उस प्रेशर से क्या होगा, ब्लड क्या होगा, बाहर की ओर फ्लो करेगा. तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोल. जब वेंट्रिकल या एट्रियम रिलैक्स्ड पोजीशन में होगा तब हम उसके बोलेंगे एट्रियल डायस्टोल और एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल. और जब ये सिस्टोलिक सिचुएशन में होगा तब हम इसको बोलेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल. नाउ इन हार्ट बीट वी कैलकुलेट टू साउंड्स. जब भी हार्ट बीट होता है इसमें दो साउंड्स को ही मेन रूप से मेजर रूप से कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम डायस्टोलिक साउंड और सिस्टोलिक साउंड, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. इस साउंड को हम बोलते हैं लब डब साउंड. मतलब हार्ट बीट की जो साउंड होगी वो क्या होगी, लब डब साउंड होगी. अब हाउ डज इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है उसके बारे में हम देखेंगे. तो सबसे पहले अब बात करेंगे हम लेफ्ट पोर्शन की, राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट के राइट पोर्शन के बारे में बात करेंगे. व्हेन द राइट चेम्बर ऑफ द हार्ट, अपर पार्ट ऑफ द राइट चेम्बर का जो अपर पार्ट है यानी कि राइट एट्रियम, जब राइट एट्रियम क्या होगा, व्हेन इट इज इन डायस्टोलिक स्टेज, जब डायस्टोलिक स्टेज में होगा यानी कि रिलैक्स्ड पीरियड में होगा, देन इट फिल्स विथ ब्लड. तो अब ये क्या होगा, ब्लड फिल हो जाएगा. ये ब्लड कहाँ से आएगा, फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा में ये बॉडी के फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इट ब्रिंग्स ब्लड, एंड इंफीरियर वेना केवा फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इट ब्रिंग्स ब्लड. इन डायस्टोलिक पीरियड इट रिसीव द ब्लड. व्हेन इट इज फुल विथ ब्लड, जब ब्लड से भर जाएगा राइट एट्रियम, देन इट बिकम्स इन सिस्टोल कंडीशन. अब ये जब फुल हो जाएगा ब्लड से तो ये सिस्टोल कंडीशन में आ जाएगा और इसमें क्या होगा, प्रेशर बनने लगेगा. और इस प्रेशर से क्या होगा, ये ब्लड को पुश करेगा किधर, राइट वेंट्रिकल की ओर. ब्लड राइट वेंट्रिकल की ओर पुश करेगा तो ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व जो है वो खुल जाएगा और ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा. मीन्स इन सिस्टोलिक पीरियड right atrium push the blood from right atrium to right ventricle when the tricuspid valve open. जब tricuspid valve open होगा तो right atrium से blood right ventricle में आ जाएगा. और now this right ventricle is filled with blood. अब ये right ventricle blood से fill हो जाएगा, तब इसमें क्या होगा, now it is in contracted form. अब ये इसमें contraction होगा, ये संकुचित होगा, ये संकुचित होगा तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा और वो प्रेशर से क्या होगा, इधर प्रेशर से ब्लड किधर पुश होगा, पल्मोनरी आर्टरी की ओर. ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आएगा और यहाँ से ब्लड सीधे कहाँ जाएगा, लंग्स में वहां पर जाकर के उसका प्यूरिफिकेशन होगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और अगेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय लेफ्ट एट्रियम. यहाँ पे कैसे आएगा ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, लंग्स में
लंग्स में जाने के बाद वहां पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ गया। कैसे आया लेफ्ट वेंट्रियम में? ये लेफ्ट एट्रियम में आने के पहले क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम क्या होगा उस समय डायस्टोलिक पीरियड में होगा, रिलैक्स्ड पोजीशन में होगा, तब ये ब्लड क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू इसमें भर गया। और जैसे ये ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से लेफ्ट एट्रियम फुल हो गया, इसमें फिर से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, संकुचन शुरू हो गया, इसमें प्रेशर बनने लगा, और इस प्रेशर के कारण क्या हुआ, बाइकास्पेड फिर से, या माइट्रल वॉल्व, इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइट्रल वॉल्व फिर से ओपन हो गया, और नाउ ब्लड इज पम्प्ड टू फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में ब्लड फिर से पंप हो गया। नाउ इट इज फिल्ड विथ ब्लड, अब ये फिर से ब्लड फिल्ड हो गया, और इसमें अब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू क्या हो गया, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरोटिक सिस्टेमिक अorta में आ गया, और इस कैरोटिक सिस्टेमिक अorta के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड की सप्लाई हो गई। अगेन क्या हुआ, फिर से ये वहां से सप्लाई हो गई, फिर से ऐसे ही सर्कल चलता रहा, मतलब क्या हो गया, राइट एट्रियम, हमको ये याद रखना है कि व्हेन आवर चैम्बर्स बिकम्स इन डायस्टोलिक पीरियड, जब हमारा चैम्बर जो राइट वेंट्रिकल है या और एट्रियम है वो अगर डायस्टोलिक पीरियड में होगा तो इट विल ऑलवेज फिल विद ब्लड, तो हमेशा वो क्या होगा, उसमें ब्लड फिल करेगा। जब वो डायस्टोलिक पीरियड में या रिलैक्स्ड पीरियड में होगा तो हमेशा उसमें ब्लड फिल होगा, और जैसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें से ब्लड क्या होगा, पुश होगा, बाहर की ओर पुश होगा, चाहे तो वो पुश आर्टरी में हो सकता है, या फिर वो पुश फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर चैम्बर होगा, मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में होगा, या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा, उसी के एक चैम्बर, उस राइट साइड में वन चैम्बर टू अनदर, या लेफ्ट साइड में वन चैम्बर टू अनदर चैम्बर। एंड डायस्टोल देयर आर three main nodes. First one is SA node, then AV node, and then Purkinje fibers. First we will see the SA node, sinoatrial node, SA node या sinoatrial node। यहाँ से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जेनरेट होता है which is responsible for the contraction of right atrium and left atrium. It is only responsible for the contraction of the atrium. ये एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए? क्योंकि जब तक एट्रियम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं होगा ये ब्लड को वेंट्रिकल की ओर पुश नहीं करेगा। इस कारण से इसका जो कॉन्ट्रैक्शन का कंट्रोल होता है ये ऐसे नोड में होता है। ऐसे नोड एट्रियम के राइट और लेफ्ट दोनों एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, और ये यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स सीधे एवी नोड को जाता है, जहां पे ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के सिग्नल्स को थोड़ा सा स्लो कर देता है। स्लो क्यों करता है? ताकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सके। एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट ना हो, इसको वो रोक सके। इस कारण से एवी नोड एक गेट की तरह कार्य करता है, एक गेट की तरह फंक्शन करता है। ये इस बात को कंफर्म करता है कि एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट ना हो। नाउ यहाँ से जो इम्पल्स है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, वो सीधे पुरकिंजे फाइबर्स में चला जाता है। पुरकिंजे फाइबर्स ये वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, ये वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से हम देखेंगे कि एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एसे नोड, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए पुरकिंजे फाइबर्स, और एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ दोनों कॉन्ट्रैक्ट ना हो, इनके बीच में कुछ ड्यूरेशन हो, कुछ टाइम हो, इसके लिए एवी नोड रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम ये जानते हैं कि जब भी ह्यूमन हार्ट ब्लड पंप करता है वो पूरे ह्यूमन हार्ट एक दिन में 5.7 लीटर ब्लड पंप करता है। मतलब एक दिन में पूरे बॉडी में वो 5.7 लीटर ब्लड पंप